डैनियल 11 चैप्टर 12 चैप्टर हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, फिर पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। धन्यवाद पिता पवित्र आत्मा, हम चाहते हैं कि आज समय के अनुसार ज़रूरत है कि हम दानियल के समान चरित्र को पाए। खुदा मसीह यीशु के नाम में विनती करते हैं पवित्र आत्मा, नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पवित्र आत्मा, दानियल का चरित्र हम में बना। मेरे खुदा परमेश्वर, ये आज के समय मसीहों के अंदर दानियल का चरित्र होना ज़रूरी है। खुदा शद्रक मेशक अबेदनेगो दानियल, इस प्रकार के लोग इस पृथ्वी के ऊपर मसीही में होना ज़रूरी है। हमारी सहायता करो, हमें इस चरित्र के अनुसार अभिषेक करो, नासरी यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे चैप्टर 11, ओवरथ्रो ऑफ पर्शिया बाय द किंग ऑफ ग्रीसिया, kings of the north and south, invasion and tyranny of the Romans. First verse, also I in the first year of Darius the Mede, even I stood to confirm and to strengthen him. And now will I shew thee the truth. Behold, there shall stand up yet 3 kings in Persia, and the 4th shall be far richer than they all. And by his strength through his riches he shall stir up all against the realm of Grecia. And a mighty king shall stand up, that shall rule with great dominion, and do according to his will. And when he shall stand up, his kingdom shall be broken, and shall be divided toward the 4 winds of heaven, and not to his posterity, nor according to his dominion which he ruled for his kingdom, shall be plucked up even for others beside those. And the king of the south shall be strong, and one of his princes, and he shall be strong above him, and have dominion. His dominion shall be a great dominion. And in the end of years they shall join themselves together for the king's daughter of the south shall come to the king of the north to make an agreement, but she shall not retain the power of the arm, neither shall he stand nor his arm, but she shall be given up, and they that brought her, and he that begat her, and he that strengthened her in these times. But out of a branch of her roots shall one stand up in his estate, which shall come with an army, and shall enter into the fortress of the king of the north, and shall deal against them, and shall prevail, and shall also carry captives into Egypt their gods, with their princes, and with their precious vessels of silver and of gold. And he shall continue more years than the king of the north. So the king of the south shall come into his kingdom, and shall return into his own land. But his sons shall be stirred up, and shall assemble a multitude of great forces, and one shall certainly come and overflow and pass through. Then shall he return, and he stirred up, and even to his fortress. And the king of the south shall be moved with choler, and shall come forth and fight with him, even with the king of the north. And he shall set forth a great multitude, but the multitude shall be given into his hand. And when he had taken away the multitude, his heart shall be lifted up, and he shall cast down many 10,000s, but he shall not be strengthened by it. For the king of the north shall return, and shall set forth a multitude greater than the former, and shall certainly come after certain years with a great army, and with much riches. And in those times there shall many stand up against the king of the south. Also the robbers of thy people shall exalt themselves to establish the vision, but they shall fall. ठीक है, ओके। ये वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे तब देखना, ओके।
14th vachan. So the king of the north shall come and cast up a mount and take the most fenced cities, and the arms of the south shall not withstand, neither his chosen people, neither shall there be any strength to withstand. But he that cometh against him shall do according to his own will, and none shall stand before him. And he shall stand in the glorious land, which by his hand shall be consumed. He shall also set his face to enter with the strength of his whole kingdom, and upright ones with him. Thus shall he do, and he shall give him the daughter of a woman, corrupting her, but she shall not stand on his side, neither be for him. After this shall he turn his face unto the isles, and shall take many, but a prince for his own behalf shall cause the reproach offered by him to cease without his own reproach. He shall cause it to turn upon him. Then he shall turn his face toward the fort of his own land, but he shall stumble and fall and not be found. Then shall stand up in his estate a raiser of taxes in the glory of the kingdom, but within few days he shall be destroyed, neither in anger nor in battle. And in his estate shall stand up a vile person, to whom they shall not give the honor of the kingdom, but he shall come in peaceably, and obtain the kingdom by flatteries, and with the arms of a flood shall they be overflown from before him, and shall be broken, yea, also the prince of the covenant, and after the league made with him, he shall work deceitfully, for he shall come up and shall become strong with a small people. He shall enter peaceably even upon the fattest places of the province, and he shall do that which his fathers have not done, nor his fathers' fathers. He shall scatter among them the prey, and spoil and riches, yea, and he shall forecast his devices against the strongholds, even for a time, and he shall stir up his power and his courage against the king of the south with a great army. And the king of the south shall be stirred up to battle with a very great and mighty army, but he shall not stand, for they shall forecast devices against him. Yea, they that feed off the portion of his meat shall destroy him, and his army shall overflow, and many shall fall down slain. And both these kings' hearts shall be to do mischief, and they shall speak lies at one table, but it shall not prosper. For yet the end shall be at the time appointed. Then shall he return into his land with great riches, and his heart shall be against the holy covenant, and he shall do exploits and return to his own land. At the same appointed he shall return and come toward the south, but it shall not be as the former or as the later, for the ships of Chittim shall come against him. Therefore he shall be grieved and return and have indignation against the holy covenant. So shall he do. He shall even return and have intelligence with them that forsake the holy covenant. And arms shall stand on his part, and they shall pollute the sanctuary of strength, and shall take away the daily sacrifice, and they shall place the abomination that maketh desolate, and such as to do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries. But the people that do know their God shall be strong and do exploits.
And they that understand among the people shall instruct many, yet they shall fall by the sword and by flame, by captivity and by spoil many days. Now when they shall fall, they shall be holpen with a little help, but many shall cleave to them with flatteries, and some of them understanding shall fall to try them, and to purge and to make them white, even to the time of the end, because it is yet for a time appointed. And the king shall do according to his will, and he shall exalt himself and magnify himself above every god, and shall speak marvelous things against the God of gods, and shall prosper till the indignation be accomplished, for that is determined shall be done. Neither shall he regard the God of his fathers, nor the desire of women, nor regard any God, for he shall magnify himself above all. But in his estate shall he honor the God of forces, and a God whom his fathers knew not shall he honor with gold and silver, and with precious stones and pleasant things. Thus shall he do in the most strongholds with a strange God, whom he shall acknowledge and increase with glory, and he shall cause them to rule over many, and shall divide the land for gain. And at the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots and with horsemen and with many ships, and he shall enter into the countries and shall overflow and pass over. He shall enter also into the glorious land, and many countries shall be overthrown, but this shall escape out of his hand, even Edom and Moab, the chief of the children of Ammon. He shall stretch forth his hand and shall overflow and shall pass over. Ammon 42 verse. He shall stretch forth his hand also upon the countries, and the land of Egypt shall not escape. But he shall have power over the treasures of gold and of silver, and over all the precious things of Egypt. And the Libyans and the Ethiopians shall be at his steps. But tidings out of the east and out of the north shall trouble him. Therefore he shall go forth with great fury to destroy and utterly to make away many. And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas of the glorious holy mountain, yet he shall come to his end, and none shall help him. Chapter 12. Michael shall deliver Israel from trouble. First verse say, and at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people. And there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that same time. And at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Then I, Daniel, looked, and behold, there stood other two, the one on this side of the bank of the river, and the other on that side of the bank of the river. And one said to the man clothed in linen, which was upon the waters of the river,
How long shall it be to the end of these wonders? And I heard the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and sware by him that liveth for ever, that it shall be for a time, times and an half, and when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these things shall be finished. And I heard, but I understood not. Then said I, O my Lord, what shall be the end of these things? And he said, Go thy way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. Many shall be purified and made white and tried. But the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. And from the time that the daily sacrifice shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up, there shall be 1,290 days. Blessed is he that waiteth and cometh to the 1,305 days. But go thou thy way till the end be, for thou shalt rest and stand in thy lot at the end of the days. Daniel chapter 11 हम पढ़ेंगे दनियल की पुस्तक 11 अध्याय 12 अध्याय। दारा नामक पहले वचन से, दारा नामक मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसको हियाव दिलाने और बल देने के लिए मैं ही खड़ा हो गया। मिस्र और सीरिया के राज्य, अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूँ। देख, फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे, और चौथा राजा उन सबों से अधिक धनी होगा, और जब वह धन के कारण सामर्थी होगा, तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम किया करेगा। जब वह बड़ा होगा, तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में बंटकर अलग अलग हो जाएगा, और न तो उसके राज्य की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगी, और न उसके वंश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उसकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगा। तब दक्षिण देश का राजा बल पकड़ेगा, परंतु उसका एक हकीम उससे अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा, यहाँ तक कि उसकी प्रभुता बड़ी हो जाएगी। कई वर्षों के बीतने पर ये दोनों आपस में मिलेंगे, और दक्षिण देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास शांति की वाचा बांधने को आएगी, परंतु उसका बाहुबल बना न रहेगा, और न वह राजा और न उसका नाम रहेगा, परंतु वह स्त्री अपने पहुंचाने वालों और अपने पिता और अपने संभालने वालों समेत अलग कर दी जाएगी। फिर उसकी जड़ों में से एक डाल उत्पन्न होकर उसके स्थान में बढ़ेगी। वह सेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ में प्रवेश करेगा और उनसे युद्ध करके प्रबल होगा। तब वह उनके देवताओं की ढली हुई मूर्तों और सोने चांदी के बहुमूल्य पात्रों को छीनकर मिस्र में ले जाएगा। इसके बाद वह कुछ वर्ष तक उत्तर देश के राजा के विरुद्ध हाथ रोके रहेगा। तब वह राजा दक्षिण देश के राजा के देश में आएगा, परंतु फिर अपने देश में लौट जाएगा। उसके पुत्र झगड़ा मचाकर बहुत से बड़े बड़े दल इकट्ठे करेंगे और उमंडने वाली नदी के समान आकर देश के बीच होकर जाएंगे। फिर लौटते हुए उसके गढ़ तक झगड़ा मचाते जाएंगे। तब दक्षिण देश का राजा चिढ़ेगा और निकलकर उत्तर देश के उस राजा से युद्ध करेगा, और वह राजा लड़ने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा, परंतु वह भीड़ उसके हाथ में कर दी जाएगी। उस भीड़ को जीतकर उसका मन फूल उठेगा और वह लाखों लोगों को गिराएगा, परंतु वह प्रबल न होगा, क्योंकि उत्तर देश का राजा लौटकर पहली से भी बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा
और कई दिनों वरन वर्षों के बीतने पर वह निश्चय बड़ी सेना और संपत्ति लिए हुए आएगा। उन दिनों में बहुत से लोग दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध उठेंगे, वरन तेरे लोगों में से भी उपद्रवी लोग उठ खड़े होंगे, जिससे इस दर्शन की बात पूरी हो जाएगी, परंतु वे ठोकर खाकर गिरेंगे। तब उत्तर देश का राजा आकर घेराबंदी करेगा और दृढ़ नगर ले लेगा, और दक्षिण देश के न तो प्रधान खड़े रहेंगे और न बड़े वीर, क्योंकि किसी में खड़े रहने का बल न रहेगा। तब जो भी उनके विरुद्ध आएगा वह अपनी इच्छा पूरी करेगा, और वह हाथ में सत्यानाश के लिए हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा, और उसका सामना करने वाला कोई न रहेगा। तब वह अपने राज्य के पूर्ण बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए हुए आने लगेगा और अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करेगा। वह उसको एक स्त्री इसलिए देगा कि उसका राज्य बिगाड़ा जाए, परंतु वह स्थिर न रहेगा, न उस राजा की होगी। तब वह द्वीपों की ओर मुँह करके बहुतों को ले लेगा, परंतु एक सेनापति उसके अहंकार को मिटाएगा, वरन उसके अहंकार के अनुकूल उसे बदला देगा। तब वह अपने देश के गढ़ों की ओर मुँह फेरेगा, और वह ठोकर खाकर गिरेगा और कहीं उसका पता न रहेगा। तब उसके स्थान में कोई ऐसा उठेगा जो शिरोमणि राज्य में अंधेर करने वाले को घुमाएगा, परंतु थोड़े दिन बीतने पर वह क्रोध या युद्ध किए बिना ही नष्ट हो जाएगा। सीरिया का दुष्ट राजा। 21 वचन से आगे, उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा, जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो न होगी, तो भी वह चयन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। तब उसकी भुजा रूपी बाढ़ से लोग वरन वाचा का प्रधान भी उसके सामने से बहकर नष्ट होंगे, क्योंकि वह उसके संग वाचा बांधने पर भी छल करेगा और थोड़े ही लोगों को संग लिए हुए चढ़कर प्रबल होगा। चयन के समय वह प्रांत के उत्तम से उत्तम स्थानों पर चढ़ाई करेगा, और जो काम न उसके पुरखा और न उसके पुरखाओं के पुरखा करते थे उसे वह करेगा, और लूटी हुई धन संपत्ति उनमें बहुत बांटा करेगा। वह कुछ काल तक दृढ़ नगरों के लेने की कल्पना करता रहेगा। तब वह दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध बड़ी सेना के लिए हुए अपने बल और हियाव को बढ़ाएगा, और दक्षिण देश का राजा अत्यंत बड़ी और सामर्थी सेना लिए हुए युद्ध तो करेगा, परंतु ठहर न सकेगा, क्योंकि लोग उसके विरुद्ध कल्पना करेंगे। उसके भोजन के खाने वाले भी उसको हरवाएंगे, और यद्यपि उसकी सेना बाढ़ के समान चढ़ेगी, तो भी उसके बहुत से लोग मर मिटेंगे। तब उन दोनों राजाओं के मन बुराई करने में लगेंगे, यहाँ तक कि वे एक ही मेज पर बैठे हुए आपस में झूठ बोलेंगे, परंतु इससे कुछ बन न पड़ेगा, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत ही समय में होने वाला है। तब उत्तर देश का राजा बड़ी लूट लिए हुए अपने देश को लौटेगा, और उसका मन पवित्र वाचा के विरुद्ध उभारेगा, और वह अपनी इच्छा पूरी करके अपने देश को लौट जाएगा। नियत समय पर वह फिर दक्षिण देश की ओर जाएगा, परंतु उस पिछली बार के समान इस बार उसका वश न चलेगा, क्योंकि कित्तियों के जहाज उसके विरुद्ध आएंगे, और वह उदास होकर लौटेगा और पवित्र वाचा पर चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा। वह लौटकर पवित्र वाचा के तोड़ने वालों की सुधि लेगा। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे।
लोगों के सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिड़कर और आग में जलकर और बंधुए होकर और लूटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभलेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कह कर उनसे मिल जाएंगे और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाए और निर्मल और उजले किए जाएं। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत न हो जाए तब तक इस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता न करेगा, न स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा और न किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों ही के देवता का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी न जानते थे। वह सोना चांदी और मणि और मन भावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। उस पराये देवता के सहारे वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा और जो कोई उसको माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। अंत के समय दक्षिण देश के राजा उसको सींग मारने लगेगा, परंतु उत्तर देश का राजा उस पर बवंडर के समान बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। इस रीति से वह बहुत से देशों में फैल जाएगा और उनमें से निकल जाएगा। वह शिरोमणि देश में भी आएगा और बहुत से देश उजड़ जाएंगे, परंतु एदोमी, मोआबी और मुख्य मुख्य अम्मोनी आदि जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। वह कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश भी न बचेगा। वह मिस्र के सोने चांदी के खजानों और सब मनभावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा और लूबी और कुशी लोग भी उसके पीछे हो लेंगे। उसी समय वह पूरब और उत्तर दिशाओं से समाचार सुनकर घबराएगा और बड़े क्रोध में आकर बहुतों का सत्यानाश करने के लिए निकलेगा। वह दोनों समुद्रों के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा कराएगा। इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा और कोई उसका सहायक न रहेगा। अंत का समय 12 अध्याय पहले वचन से। उसी समय मिकायल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ न होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर के पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। यह सब सुन मुझ दानियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और 2 पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तट पर और दूसरा नदी के उस तट पर है। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा?
तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिने और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले के शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये सब बातें पूरी होगी। यह बात मैं सुनता तो था, परंतु कुछ न समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी हुई है। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। जब से सत्य होम बलि उठाई, जब से नित्य 11 वचन और एक बार पढ़ेंगे। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घुनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धर कर 1335 दिन के अंत तक भी पहुँचे। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 18 चैप्टर 28 वर्स से 40 वर्स, 2 क्रॉनिकल 17 चैप्टर 18 चैप्टर, यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 28 से 40 वचन, दूसरे इतिहास की पुस्तक 17-18 अध्याय। हम अकेले में बैठकर पर्सनल टाइम में, व्यक्तिगत समय में हमने ये बाइबल रीडिंग करने का फैसला किया है। अगर आप अपने तरीके से उसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर व्यक्तिगत समय में आप पढ़ते हैं तो हमने ये फैसला इसीलिए किया है कि अकेले में परमेश्वर हमको व्यक्तिमत्व बना के देगा। हमारे अंदरूनी मनुष्य के अंदर हमारा खुद का इंसान जो हमें है वो उसमें सुधार लाएगा, और परमेश्वर चाहता है उसके राज्य के कामों के लाभ के लिए वैसा पर्सन हमको तैयार करेगा। ये हम चाहते हैं, इसके लिए हम किसी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, अकेले में बैठकर बाइबल को रीड करेंगे 2 साल के बाइबल रीडिंग को, ठीक है। इसके अलावा कोई और ख़ास मकसद नहीं है। वैसे आप अपने तरीके से भी 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को पूरा कर सकते हैं। निश्चित है पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए उपलब्ध है। हमने निश्चित परमेश्वर के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आइए। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।